کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. اور پہلے تارا سے کاٹ کے جایا کرو، اتنا کام تو کر رہے ہیں خالی توڑ کے دیکھو تو صحیح گنجل پہ ہے پورا. ہونے بھی جو ہل گیا تو ریکارڈنگ میں ادھر مصیبت پہ گئی. کتنا کیجول ایٹیچیوڈ ہے، کلہ رحمی بندہ میں کدھر جاؤں یار. عید الفطر 1447 ہجری کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. تقبل اللہ منا ومنکم. اللہ تعالی ہماری عبادتیں بھی قبول کرے اور آپ کی عبادتیں بھی قبول فرمائے. یہ حقیقت ہے کہ ایران بہت بڑی تکلیف سے گزر رہا ہے. 50,000 سے زیادہ مکان تو شہید ہو چکے ہیں. اگر ایک مکان میں ایک بندہ بھی رہتا ہو تو شہداء کی تعداد 50,000 تو بنتی ہے. لیکن آپ کو یوٹیوبرز کیا بتا رہے ہیں؟ کبھی 1200 کا فکر دیتے ہیں، کبھی 1400 کا. تو اس پہ پھر آرمی چیف نے کہا کہ اگر کسی کے دماغ میں ہے نا کہ اگلا نمبر پاکستان کا ہے تو پھر اگلا نمبر صرف پاکستان کا نہیں ہوگا، آدھی دنیا ہم ساتھ لے کے ہی مریں گے، اکیلے نہیں مریں گے. یہ ذہن میں رکھیں. اور کہتے ہیں ہم نے یہ بتا دیا ہوا ہے کہ کسی کے دماغ میں ہمارے والے سے کوئی چیز ہے تو ہم نے پھر اکیلے نہیں مرنا. ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تمہیں بھی لے ڈوبے. خان صاحب دوبارہ غلطی نہ ہو. تسی انہاں نوں ادھے گھنٹے دا لیکچر دے دو تو میں ہر وقت لیکچر دینا تے کوئی نہ کوئی کام کر سکتا ہے. انشاءاللہ دنیا میں کوئی کام بھائی بغیر ڈسپلن کے نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیے گا. اور ڈسپلن کا زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے. ادھر نہیں بول کے بول کے لایا اللہ سے بول رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہلم اکیڈمی کی طرف سے تمام بھائیوں کو السلام علیکم. الحمدللہ ہمیشہ کی طرح انتظامیہ اور اداروں کی طرف سے سیکیورٹی کے بہترین انتظامات موجود ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہاں آنے والا ہر بندہ پرسکون ماحول میں بیٹھ کر سیشن اٹینڈ کر سکے. جو لوگ بائک پر یا گاڑی پر آتے ہیں تو ان کے لیے پارکنگ کا بھی بہترین انتظامات موجود ہیں، جہاں ٹوکن کے ذریعے آپ کی گاڑی یا بائک کھڑی ہو جائے گی. اکیڈمی کی اپنی سیکیورٹی بھی آئے ہوئے مہمانوں کا خاص خیال رکھتی ہے اور احسن طریقے سے چیکنگ کے بعد آپ کو ہال میں جانے کی اجازت مل جاتی ہے. دوران چیکنگ اگر کسی بھائی کو انتظامیہ سے شکایت ہو تو ہم پیشگی معذرت خواہ ہیں. یہ سب کچھ بھیا آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. اور ہاں ایک بات یاد رکھیے، آپ جب بھی جہلم اکیڈمی آئیں تو اپنا آئی ڈی کارڈ ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر آئیں. جہلم اکیڈمی ایک ایسی جگہ جس کو صحیح معنوں میں اللہ کی خانقاہ کہا جا سکتا ہے. ایک ایسی جگہ جہاں لوگ رسول اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اللہ کے مجاہد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس آتے ہیں. یہاں جتنے بھی لوگ آتے ہیں استاد محترم نہ تو ان سے کوئی چندہ لیتے ہیں، نہ گاڑیوں اور جوتوں کے نام پر کوئی ٹوکن کی فیس وصول کی جاتی ہے، اور نہ ہی بک سٹال کے نام پر اپنی جیبیں بھری جاتی ہیں. انجینئر صاحب کا حکم ہے کہ جتنے بھی اللہ کے راہ کے مسافر یہاں آئیں انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو. اکیڈمی کے بک سٹال پر رکھی کتابیں اور پمفلٹ پر انجینئر صاحب اپنی جیب سے پیسے ڈالتے ہیں، صرف اس لیے کہ عوام الناس کو احادیث کی کتابیں خریدنے میں آسانی ہو اور بجائے صرف سننے کے احادیث کا علم بھی ہر گھر تک پہنچ سکے.
अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 17 साल से उस्ताद मोहतरम यहाँ बैठकर दीनी मजालिस का एहतमाम करते हैं। अब तक तो लाखों लोग जेलम एकेडमी से होकर जा चुके हैं और आप देख रहे हैं ना कि अब तो एकेडमी में इतनी जगह नहीं होती जितने लोग आ जाते हैं। लिहाजा तमाम भाइयों से ये एक गुजारिश है, जो भाई एक बार एकेडमी का विजिट करके जा चुका वो दोबारा ना आए, यानी अपनी रूटीन ना बनाए यार, क्योंकि इस तरह दूसरे लोगों के साथ हक तलफी वाला मामला भी हो जाता है। तो बजाय आप बार बार आए, अपने उन भाइयों को भी मौका दे जो अभी तक एकेडमी विजिट करके और अपने उस्ताद मोहतरम से मिलके जा नहीं सके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? इरफानुल्लाह। इरफान भाई कहाँ से हैं? चारसद्दा से। चारसद्दा से? जी सर। चलें जी, वेलकम जेलम एकेडमी में। ईद का इतना बिजी डे होता है तो आपको टाइम मिल गया? बस काफ़ी अर्से से प्लान था कि आना है, तो मसरूफियत की वजह से मैंने कहा चलो ईद है तो चलो ये भी काम हो जाए। घर वालों ने छोड़ दिया आज ईद वाले दिन है? हाँ जी बिल्कुल। अकेले आए? ये बच्चे साथ है, वो होटल में। अच्छा, फैमिली के साथ होटल पे आए हैं और यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल। नहीं तो इतना क्या आपके पास उसके आम दिनों में टाइम नहीं मिलता था? नहीं, बस मसरूफियत दुकान है ना हमारी, ठीक तो है। उधर ड्यूटी देनी पड़ती है, तो छुट्टी भी थी तो मैंने कहा चलो बच्चों को भी घुमा करा लेंगे और ये भी हो जाएगा काम। ठीक होगा। चलो जी, वेलकम जी। इंशाल्लाह आज मुलाकात होगी आपकी इंजीनियर साहब से इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमाल अहमद ख़ान है। कमाल अहमद खान भाई कहाँ से आए हैं? मैं कराची से आया हूँ। वेलकम जी जेलम एकेडमी में। बड़ा लंबा सफ़र करके आए हैं जी माशाल्लाह। बिल्कुल। बड़ा बिजी डे है ईद का। मेरा तो वही क्वेश्चन है, कैसे आप निकल आए, टाइम निकाल लिया? बस जी असल में मतलब प्राइवेट नौकरी करता हूँ, ठीक है। तो ईद की छुट्टियों के साथ अपनी एनुअल लीव थोड़ी सी मिलाई है, तो फिर अपनी बेगम को लेके आया हूँ मैं यहाँ पे, खास तौर पे अली भाई का बयान सुनने के लिए। सही हो गया। और वहाँ पे कोई होटल में रूम वगैरह लिया हुआ? जी 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 बिल्कुल। सही हो गया, साथ आउटिंग भी हो जाएगी। चले हैं जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वैसे आपको बताऊँ इंजीनियर साहब ने ये आप जैसे लोगों के लिए रखा हुआ है कि जो नहीं आ सकते ना, कम अज़ कम ईद पे तो छुट्टियां हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो जो आना चाहते हैं तो ईद पे ज़रूर आएंगे। हम तो वैसे मेरे से पूछे तो मैं भी ये साख में था कि ईद पे बच्चों को भी, हमारे अपने बच्चों को भी तो छोड़े, लेकिन वो कहते नहीं। एक तो नागा कोई नहीं करना, हमारे अंदर छुट्टी वाला काम कोई नहीं है, हर संडे प्रोग्राम होना है माशाल्लाह। और दूसरा ये है कि जो लोग नहीं आ सकते, जो ईद पे निकलते हैं छुट्टियों को लेके, तो वो आएंगे। चले जी, वेलकम, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान? उमर अली, उमर भाई कहाँ से आए हैं? रावलपिंडी। वेलकम जी जेलम एकेडमी में। उमर भाई अकेले आए हैं आप? शुक्र, नहीं भाई है छोटा सा। दो भाई आए हैं जी उमर भाई, बिजी डे है और ईद का दिन, जी और जी। कैसे टाइम मिल गया? बस छुट्टियां थी, हमने कहा चलो इसको यूटिलाइज करते हैं इस नेक मकसद के लिए। माशाल्लाह। वैसे पिंडी से तो बंदा आम दिनों में भी आ सकता है, और ईद का दिन चूज़ करना, वैसे आपको पता है बच्चे घर वाले छोड़ते को नहीं है इस तरह से। बस ये हमें ज़्यादा सूटेबल डे था, तो हमने कहा चलो इस लिहाज से चलते हैं उधर। सही हो गया। चले, आज फर्स्ट टाइम आ रहे हैं जेलम एकेडमी में? नहीं, सेकंड टाइम। सेकंड टाइम। जी यानी आपकी मुलाकात है उस्ताद मोहतरम से, लेकिन जी। आपने आज के दिन को भी यूटिलाइज कर लिया। जी बिल्कुल ऐसे। चलिए, अल्लाह ताला आपका दिन भी कबूल फरमाए और आपका मकसद भी, और इंशाल्लाह आपकी मुलाकात भी होगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? दीवान मुख्तार। दीवान भाई आप साथ हैं इनके भाई? जी जी सर। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपको भी आपके कोई दोस्त कोई आगे पीछे कोई नहीं है, आप इतना बिजी डे छोड़ के इधर आ गए? फैमिली वाले की पहली बात ये है कि वो तो घर वाले सारे इंजीनियर साहब को सुनते हैं, हाँ हाँ हाँ, और हम सब ने तबलीग की है घर वालों को, लेडीज को। माशाल्लाह। और दोस्त भी वही रखे हैं जो इंजीनियर साहब को सुनते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था ना, ईद वाला दिन तो इतना मसरूफ होता है बंदे के, यार दोस्त और वो घर वाले, और कुछ बंदा प्लान कर रहा होता है, और आपने प्लान किया जी एकेडमी जाना है, बड़ी बात है जी माशाल्लाह। उसमें फ्री टाइम बाद में निकलेगा तो घूम फिर लेंगे, ये भी आउटिंग भी होगी साथ हाँ, में। आउटिंग होती है, कोई शक नहीं। दूसरे ज़िले से आने वाले लोग, दूसरे शहरों से आने वाले लोग के लिए ये भी होता है, चले इस बहाने जेल भी देख लेंगे, चलो दीनी बात भी सुन लेंगे, साथ मोहतरम से भी मिल लेंगे। बिल्कुल इसी तरह। चलिए, जब जज़ाक। जेल से आए हैं ना, तो उसके बाद हमें देखे भी नहीं है, तो हमने कहा चले आज। चले जी, इंशाल्लाह आज आप इंशाल्लाह देखेंगे, आज तो बैठे भी आप पास हैं इंशाल्लाह। जी, जी, इसलिए जल्दी है आगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? इंजीनियर मोहम्मद उसामा मंसूर। इंजीनियर मोहम्मद उसामा मंसूर। उसामा भाई कहाँ से हो? सर इस्लामाबाद से। वेलकम जी। अकेले आए हैं भाई? जी सर, अकेले। ईद वाला दिन
और कोई दिन नहीं मिला? सर ईद मिलनी थी इंजीनियर साहब से तो इसलिए। माशाल्लाह ईद मिलनी थी, गट। वैसे इसमें इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, ईद का दिन एक मसरूफ दिन होता है, घर वाले बच्चे और बाप के फैमिली के दोस्त, हाँ जी। और जो कुंवारे हज़रात हैं उनकी अपने दोस्ती यारी। नहीं मैं तो शादीशुदा हूँ लेकिन फिर भी स्पेशल टाइम निकाल के आया हूँ। चलो जी, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? जी फर्स्ट। इससे पहले नहीं आए? नहीं। आम डेज में भी तो आ सकते थे, आपने भी ईद का दिन यानी ज़्यादा बिजी होते हैं भाई। हाँ जी, लेकिन बस ईद पे थोड़ा सा होता है कि हाँ, ये दर्स रखा इंजीनियर साहब ने उन लोगों के लिए है, क्योंकि उनके माइंड में है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी मसरूफियत इस लेवल की होती है, वो नहीं निकाल सकते टाइम। ईद पे तो छुट्टी होगी ना भैया? हाँ जी ऐसे वो आएंगे, ऐसे। सही हो गया। चलें जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया आपका? अयाज खान। याद भाई कहाँ से हैं? हम लाहौर से। लाहौर जी, वेलकम। कितने दोस्त आए हैं? 3 हैं, कज़न है। कौन कौन है? आप है साथ? जी। सही हो गया। अच्छा जी, ईद वाले दिन तीनों दोस्त निकले झेलम अकेडमी में जी। रात को आए हैं यहाँ पे झेलम में, सुबह आए हैं? सुबह पहुँचे हैं, 7 बजे। सुबह पहुँचे हैं, जी, ठीक जी। हो गया। ज़्यादा मसरूफियत होती है आम दिनों में क्या आपने ईद का दिन रख दिया? ज़्यादा ही होती है मसरूफियत आम दिन। ठीक हो गया। और कब से जानते हैं इंजीनियर साहब को? इंजीनियर साहब को तो हम पिछले कोई 5-6 माह से जानते हैं। सही हो गया। और किसका प्लान था? हम तीनों का ही समझ लें प्लान था। ठीक हो गया, आप तीनों का प्लान था? काफ़ी देर से था, मगर अभी ईद की आपको पता है 3 छुट्टियाँ साथ ही होती, 3-4 छुट्टियाँ थी। वैसे खाली संडे को होती है तो वो फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है लाहौर से, तो इसलिए हमने फिर ईद पे प्लान किया चलो 3 छुट्टियाँ इजीली हम हो आएंगे। सही हो गया। अच्छा जी, चले भाई से बात करवाइएगा प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम बाबर तारिक। और भाई वेलकम पहले तो झेलम अकेडमी में आप लोगों को। बड़ी बात है जी माशाल्लाह। ईद के दिन लोग जो अब मुख्तलिफ प्लान करते हैं, मुख्तलिफ आउटिंग टूर, ये वो खाने पीने के प्रोग्राम, और आप लोग दीन के लिए निकले हैं। अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप भी? हाँ जी फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं। कब से जानते हैं आप उस्ताद मोहतरम को? मैं तो तकरीबन 7 साल से सुन रहा हूँ माशाल्लाह। वली भाई को। मसरूफियत के बाद आप भी नहीं आ सके? नहीं मसरूफियत नहीं, बस वैसे ही लाहौर में रहते हैं, आपको पता है। ये भी बड़ी बात है यार, ईद वाला दिन बिजी डे होता है, आप निकल आए। अचानक ही प्लान बन गया तो हाँ जी। चले, कम से कम आज हमें भी उस्ताद मोहतरम की वो हिकमत समझ आ गई कि वो ईद का प्रोग्राम क्यों नहीं मिस करते, कि लोग ईद को निकलते हैं। देखिए जी अली भाई से मोहब्बत भी है, बेशक, और दीन की निस्बत भी है, तो इस वजह से प्रोग्राम बन गया हमारा। बेशक जी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शरीफ खान। सॉरी? मोहम्मद शरीफ खान। मोहम्मद शरीफ जी। मोहम्मद शरीफ भाई, आप भी तीनों भाई इकट्ठे हैं जी, कज़न हैं? कब से जानते हैं आप इंजीनियर साहब को? आपको तारफ़ किसने? जी तकरीबन 7-8 साल से। आप भी पुराने? काफ़ी। ठीक हो गया, सही हो गया। आपकी और कोई मसरूफियत नहीं थी घर में, कोई दोस्तों के साथ को प्लान श्लान ये वो? सर मसरूफियात तो काफ़ी थी, लेकिन वो कहते ना कि बड़ों को ईदी मिलनी चाहिए। इंजीनियर साहब बड़े हैं, सबसे पहले ईदी तो लाजमी मिलनी चाहिए। सही हो गया। हफ्ते को तो बैठते ही नहीं, वरना कल भी आ जाते, लेकिन संडे का दिन होता इसलिए आ जाइए। इंशाल्लाह मिलेंगे, ईदी भी मिलेंगे इंशाल्लाह। चलो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाह। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आज 22 मार्च 2026 को संडे के दिन बामुताबिक 2 शवालुल मुकर्रम 1447 हिजरी हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 227 होने जा रहा है। आज के सेशन में क्या क्या हुआ, कितने लोग आए, कहां से आए, और एकेडमी के अंदर के दीगर वो मुनाजर जो आप देखना चाहते हैं, हम आपको झेलम अकेडमी के इस चैनल से दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपसे गुजारिश है कि जब भी आप झेलम अकेडमी आए ना, तो मेरे साथ अपनी लाइफ स्टोरी भी लाजमी शेयर करें, जिसके रिकॉर्डिंग मैं सुबह 7 बजे से 9 बजे तक एकेडमी के अंदर करता, जो आपके अपने ही चैनल जिसका नाम झेलम अकेडमी फरहान कुरैशी है, इस पर अपलोड भी की जाती हैं। अक्सर लोग हाइलाइट्स जब देखते हैं ना, तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछते हैं कि आज का करंट अफेयर क्या था, तो ये भी मैं आपको बताता चलूं। आपके ये रियल टाइम क्वेश्चंस पर्चियों की शक्ल में मेरे पास आ चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला इन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आज का करंट अफेयर हम डिस्कस कर लें।
आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। चले अब अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमाईन इला यौमिद्दीन। आमीन। यहाँ हमारे ना अवैस भाई ड्यूटी पे होते हैं, आज वो नहीं है, तो इनको चले ये एहसास हुआ है कि हर बंदा कोई ना कोई काम कर रहा होता है। उन्होंने हर चीज़ रेडी करके रखी होती है और सेकंड्स में मैं लगाता हूँ, ये पकड़े, ये पहला, ये तरतीब से लगते हैं, ਐਵੇਂ नहीं कि जो भी मर्जी लाता। शाह जी अगली बार ना तुसी इन्हां नूं भी पूछा करो गुंजल ते नहीं पे, मैं तो कभी देखा ही नहीं। अवैस भाई नहीं थे आज तो आपके वैसे ही कान खड़े हो जाने चाहिए थे, बल्कि दो सिंह भी निकल आने चाहिए थे कि आज तो वैस भाई नहीं है तो मैं जिम्मेदारी लूं, मोटा मैं दें जाके। नहीं माइक इकट्ठे ही हैं, लेकिन उनको यहां तक पहुंचने के लिए किसी रास्ते से गुजरना है ना, वो सारे इकट्ठे हुए हैं ऐसे। प्रोग्राम तो ठीक है, कैमरा नीचे कर फिलहाल। अच्छा जी, चले जी। फरान साहब आज तो नींदर तो वैसे नहीं माफ होनी, क्योंकि एक तुसी आए लेट हो। आज बहुत ज्यादा है। क्यों? एक कोड़ी गल मैं की ना, इन्हां दी नींदर उड़ जानी है। नहीं कर दी है कि थोड़ी की वो गल मैं फिर उस्मान भाई को लवावांगा, क्योंकि वो कोड़ियां गल्लां करते हैं, वो मनु भी करते हैं तो मनु अग लग जाती है। उस्मान भाई अज मेरे हिस्से दी सारियां इन्हां नूं कर दो, ठीक है ना? पहले भी कुछ कर गए। अच्छा कर गए, ठीक, घंटे कट जाओगे हैं, ठीक है। अच्छा मेरे भाइयों मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए, आपको इंस्ट्रक्शंस मिल चुकी हैं इंशाल्लाह। अब उसमें मज़ीद कोई वैल्यू एडिशन की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो आज के टॉपिक्स हैं मैं उनको कवर करूंगा, आपकी पर्चियाँ भी आ चुकी हैं इंशाल्लाह। अल्लाह का नाम लेके इनको कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ जी भैन रेडी हो, स्टार्ट करिए जी। इश्क दे चले नंबर लै गए, अकल वाले उमरा गालियां इसकी तशरीह करते हैं छेड़ने वास्ते, सिर्फ छेड़ने वास्ते। इश्क दे चले इत्थे भी जलील होए मेरे हथों, अगे भी जलील ही होंगे। हाँ, और अकल वाले यहां भी बाजी ले गए, और बाजी ले गए ना, मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। ये अकल की बाजी है इश्क के ऊपर। वो आपने अब शेर नहीं सुनाना डॉक्टर साहब का, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क तो बस्तफार। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कूदे नहीं थे, उनको धक्का दिया गया था, वरना कभी भी वो आग में ना डाले जाते। कूदा नहीं था, फेंका गया था। और ये सबसे पहले हमारे उस्ताद गामदी साहब ने गिरफ्त की थी इस शेर के ऊपर। ये उन्होंने थिंक आउट ऑफ बॉक्स किया, तो उससे मुझे फिर सोचने का मौका मिला कि यार इस किस्म के शेर क्या है कि आप लोगों को, इश्क और अकल का मुकाबला ही नहीं है। कुरान में तो अकल ही को बुनियाद बताया गया है, और इश्क नाम का तो लफ्ज ही कोई नहीं, मोहब्बत है। इश्क ज़ाहिर है उसी की सुपरलेटिव डिग्री के तौर पे लोग प्रेजेंट करते हैं। हम उस झगड़े में नहीं पढ़ते कि इश्क रसूल लफ्ज गलत है और मोहब्बत रसूल कहना चाहिए, वो एक इल्मी बहस है, उनमें नहीं पढ़ने की जरूरत। लेकिन अकल की बुनियाद पे ही सब कुछ चल रहा है भाई। अंबिया की विरासत जो है अक्ल है। इश्क वालों में तो इल्म होता ही कोई नहीं, इल्मु बस करियो यार। और कुरान और सुन्नत हमें कह रहे हैं, उल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। ऐ नबी तुम फरमाओ कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते, नसीहत तो हासिल नहीं करते मगर अक्ल वाले। तो कुरान अक्ल वाला किसको कह रहा है? इल्म वालों को। इश्क को ये वैसे सही लिखा है, इश्क दे चले ही होने ने, चले ने ना, उन्होंने इल्म ते को नहीं ना, ते चले ही ने ना। तो कुरान तो कह रहा है भाई इल्म वाले। नबी इस्लाम को एक दुआ सिखाई गई
क्रिटिकल। और रब जिदनी इल्मा, ए नबी आप भी दुआ किया करें, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर दे, मेरे इश्क में इजाफा कर दे, मेरे जुनून में इजाफा कर दे। नहीं, इल्म में, इल्म और अक्ल ये दोनों एक समझ ले कंबाइंड चीजें हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। और इश्क और चल्लापन ये भी लाजम मंसूब है। अगर अल्लाह की जात के बगैर कुछ नहीं होता तो गुनाहों की सजा क्यों मिलेगी? नहीं, अल्लाह ने तो नहीं कहा आप गुनाह करें, अल्लाह ने खुली छुट्टी दी हुई है और साथ कहा कि मैं पकड़ लूंगा। ये मसला तकदीर है, इसमें मेरी तफसीली वीडियो रिकॉर्ड है, वो आप देख लें। अभी कुछ पर्चियां बाकी हैं, इंशाल्लाह इनको अगली दफा कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम ऊपर हो चुका है। वो शाम भाई ने टाइम ले लिया ना, वरना ये मेरी 8-10 पर्चियां और कवर हो जानी थी और वो करना जरूरी था। लोग तो तैयारी में बैठे होते हैं ना, तो करंट अफेयर है, बाकी तो मैं सारे कुछ रिकॉर्ड करा बैठा हूं, उनमें करंट अफेयर से ही बोलना है और उसी में ही टेस्ट है ना सुनने का भी। आप देख ले 5-5 मिलियन तक सब्सक्राइबर्स हैं बाज लोगों के, 4 मिलियन 3 मिलियन। व्यूअरशिप कितनी है? 1500, 2000, 2500, 3000। इनने सोने सोने थंबनेल बने ने प्रोफेशनल किस्म के, और ओना फिर कहते हैं जिनकी अपनी तादाद करोड़ों में, और उनके वायद वो टॉप के मुफ्तियां और उलमा हैं, नहीं लोग देखते। उसकी वजह यह है कि उनके पास वही कहानियां, वही गिले शिकवे। हाँ, कभी मेरी कोई तस्वीर लगा दे, कोई थोड़े ज्यादा व्यूज मिल जाते हैं। तो हमने उनको भी रिक्वेस्ट की कि करंट अफेयर्स में बोला करें, उम्मत को गाइड करें कि इस सूरत हाल में आपने क्या करना है। वो गाइड करने के लिए आते हैं कि जी 1 लाख बंदा जनाब साडा तैयार है फलस्तीन जाने वास्ते, ए गाइड करना आते हैं। हाँ, 1 लाख बंदा उसे खड़ के क्या करना है जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं दी हुई, एवं कहानी छड़ देती। और साडे हाफिज ताहिर अशरफी साहब 30 लाख मदारस के स्टूडेंट तैयार हैं। एक मदरसा चलाता है वो भी, मतलब वो पार्टनर है, चलाना भी कोई नहीं उस बेचारे दे भी पूरे, एक मदरसा सिर्फ पूरे पाकिस्तान में 3 लाख। और जिन्हों को सारे मदरसे ना, मैगल साहब ने कहा यार 3 लाख ते सारे रल के नहीं इकट्ठे कर सकते, तू कह कि तू कर रहे हैं। हालांकि वहां बरेलवी देवबंदी वाले हदीस सारे बैठे हुए थे। कहानियां तो इस तरह की जज्बाती बातें होती रहती हैं। तो करंट अफेयर पे बोले, लोगों को बताएं क्या हो रहा है दुनिया में और आज कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका सलूशन क्या है। बाकी मैंने तो कोई टॉपिक नहीं छोड़ा, पिछले 17 साल रिकॉर्डिंग्स ही करवाई है ना। और अब पिछले कम से कम मैं 5 साल से करंट अफेयर, बल्कि 5 भी नहीं, अब तो 8-9 साल से मैं उस हफ्ते का जो करंट अफेयर है उसके ऊपर डिस्कशन करता हूं ताकि लोगों को पता चले और वो अपडेट होते रहे। वरना मैंने अगर दोबारा से मैं यानी आज मैं इल्म गैब पे बोलूं, अगली दफा हाज़िर नाज़िर पे बोलूं, तीसरी दफा या तो नबी पे बोलूं, तो भाई इस पे तो मैं कई दफा बोल के वीडियोस रिकॉर्ड करवा चुका हूं। करंट अफेयर पे बात करनी है ताकि उसका फायदा हो। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमाईन इला यौमिद्दीन, आमीन। ले जी, आपकी ये सारी पर्चियां खत्म हो चुकी हुई हैं और जो 5-7 बच गई हैं शाम भाई की वजह से, वो इंशाल्लाह हम अगले पब्लिक सेशन नंबर 228 में कवर कर देंगे। बाकी ये तो बरकत के लिए होती है ना पर्चियां, असल चीज तो ये है कि मिल बैठने का बहाना है, इसीलिए हमने ईद के दूसरे दिन एकेडमी खोल ली। आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल काम था, वॉलंटियर, और हमारी वजह से पंजाब पुलिस वालों की भी बेचारों की छुट्टी मारी गई। उनको बुलाया, उन्होंने कहा नहीं जी इंजीनियर साहब तो पता है वो जिद इतने उन्होंने करना है प्रोग्राम। मैंने कहा हमने नागा नहीं करना। उसकी वजह है कि मुझे पता है कि आप लोग इतनी दूर से, आप मुझे बताएं रियल टाइम आप में से कितने हैं जो आज पहली दफा आ रहे हैं। अंदाजा करें, इतने सारे लोग पहली दफा आ रहे हैं, तो आप लोग जैसे मैं यहां बैठा हुआ हूं ना, इसलिए अब आपने ना ताउन करना है हमारी इंतजामिया के साथ। आपको ये तस्वीर सेशन के लिए अंदर लेकर आएंगे एक मैनेजेबल तरीके से इंशाअल्लाह ताला, और तस्वीर के लिए अब अंदर एंटर हो, मेरे हाथ चूमने की कोशिश करना, जफ्फी डालने की कोशिश करना, इससे कोई जायज तरीके से फैज ट्रांसफर नहीं होगा। मेहरबानी करें, मेहरबानी करके आप मुसाफा करें, तस्वीर खिंचवाएं और पतली गली से बाहर निकलें। इतनी पतली सी गली है ये, ठीक है। इससे आप बाहर निकलेंगे, पीछे आप स्टॉल पे बरामद होंगे। स्टॉल के ऊपर मार्केट से आधी कीमत के ऊपर हमने किताबें लगाई हुई हैं।
बकिया की रकम अकेडमी बर्दाश्त करती है ताकि आप लोग खरीद सकें। हाँ, कोई आलिम दीन है और पहली दफा है, उसको फ्री मिलेगी, कुरान का तर्जुमा भी और मिशकात भी। बाकी लोग कुरान पाक फ्री ले सकते हैं वो लोग जो खरीद नहीं सकते। अदरवाइज जो खरीद सकता है तो 300 रुपए तो कोई रकम नहीं, बल्कि अब ये वो बड़े वाला भी कुरान आ गया, वो 500 रुपए ही है उसका हदिया। हाँ 500, तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो उसकी वो लागत है ना उसके ऊपर हम देते हैं। अदरवाइज जो नहीं अफोर्ड कर सकता उसको फ्री मिल जाएगा कुरान पाक का तर्जुमा। मिशकात सिर्फ उलमा दीन के लिए, उलमा का अदब करना चाहिए ना। मैं यकीन करें, मेरे ये करीबी साथी भी जानते हैं, आप लोग तो के सामने तो मेरी पिक्चर ये कि मैं मौलवियों के खिलाफ हूं। यकीन करें जितना मेरे दिल में दर्द है ना इस तबके का, मैं खिलाफ हूं इनके जो पेशवा हैं, जो जिन्होंने हराम के चंदे समेटे। आम बंदा तो बेचारा मुश्किल से अपना वक्त गुजार रहा है, 25,000 रुपया गवर्नमेंट ने लगाया, खुश हूं। कम से कम 50,000 होना चाहिए। 2 वक्त की रोटी बेचारे कैसे पूरी करें। हम हराम खोरों के खिलाफ हैं, इसलिए मैं आलमे दीन जितने आते हैं उनको फ्री हम देते हैं। ये मिशकात शरीफ, मिशकात शरीफ जो खरीद सकते हैं वो ठीक है। रिसर्च पेपर्स का एक सेट सब ने लेना है, 100 रुपया टोकन मनी है उसकी, वैसे 500 उसकी कीमत है। 12 का पैकेज, 3 अज़कार कार्ड है, नोट रिसर्च पेपर है, करबला वाला रिसर्च पेपर, सिर्फ करबला वाला रिसर्च पेपर 32 सफ़ों का है, 80 ग्राम और कलर्ड है। उसकी फोटोकॉपी अकेले की 500 की नहीं होती। हम सारा सेट 100 रुपए का, टोकन मनी बकिया की रकम अकेडमी बर्दाश्त करेगी। हाँ देखो कुरैशी साहब अपनी गल नहीं भूलते। ये क्या है इरशाद भाई, मैंने तो बहुत कुछ कहा है। बड़े सियाने हो जी। कुरैशी साहब ने ना पब्लिक सर्वे दे देगा एंड से, ठीक है जी। ये एंड पे पब्लिक सर्वे रिकॉर्ड करते हैं। स्टॉल से फारिग होके ना 2-3 छोटे छोटे सवाल आपसे पूछेंगे और इसकी वजह से लोगों को मोटिवेशन होगी। किसी को ना, मुझे अकेले को जरूर होती है, मैं ये सारे देखता हूं, पब्लिक सर्वे भी, लाइफ स्टोरीज भी, ये आपका हिस्सा है। वतवासौ बिल हक जो कुरान में है ना, वो क्या है? हक बात की वसीयत करते रहो। वसीयत क्या दीवारों को करनी है? नहीं, आपने अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करनी है कि मुझे भी इस तकलीफ से गुजरना पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बाकियों को भी कहता हूं कि वो ये काम करें। ये है वतवासौ बिल हक। हाँ, ये करना है आपने, तो वो आपने ये रिकॉर्ड करवाएं इंशाल्लाह। 2-2, 3-3 मिनट की रिकॉर्डिंग करते हैं, ये वो कोई लंबी वाली स्टोरी नहीं है, ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।